যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, ষষ্ঠ 10 অধ্যায় চলছে, পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 69 থেকে কন্টিনিউ করব, 69 থেকে 86 অব্দি করব। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য 16.69 to 86, 69 নম্বর শ্লোক। তো এখন অব্দি আমরা দেখছি সব, দিস ইজ থার্ড টাইম বাংলার ভক্তরা জগন্নাথ পুরীতে এসেছেন, মহাপুরুষ দেখা করতে, চাতুর্মাস কাটালেন, কাটিয়ে তারে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন, এই মতো বিদায় দিল সব ভক্তগণ। নিত্যানন্দ প্রভুকে বিদায় দিলেন আলিঙ্গন করে, আর সমস্ত বাকি ভক্তদেরও বিদায় দিলেন মহাপ্রভু চাতুর্মাস শেষে। ঠিক আছে, 69 নম্বর শ্লোক। কুলীন গ্রামী পূর্ববত কইল নিবেদন, কুলীন গ্রামী পূর্ববত কইল নিবেদন, প্রভু আজ্ঞা করো আমার কর্তব্য সাধন, প্রভু আজ্ঞা করো আমার কর্তব্য সাধন। গত বছরের মতো এইবারও কুলীন গ্রামের এক ভক্ত নিবেদন করলেন, হে প্রভু, দয়া করে আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি কি কর্তব্য সাধন করব। প্রভু কহে বৈষ্ণব সেবা নাম সংকীর্তন, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ, दुई करे शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, তুমি বৈষ্ণবদের সেবা করো এবং নিরন্তর কৃষ্ণ নাম কীর্তন করো, এই দুইটি কার্য করলে অচিরেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদ পদ্মে আশ্রয় লাভ করবে। शशि माता जी। यस प्रभु जी। प्रणाम। इंदिरा सखी माता जी को एक बार नॉक कीजिए प्लीज। ओके प्रभु जी। तेह कहे के वैष्णव की तार लक्षण, तेह कहे के वैष्णव की तार लक्षण, तबे हासि कहे प्रभु जानी तार मन, তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন। সেই কুলীন গ্রামবাসী ভক্তটি জিজ্ঞাসা করলেন, দয়া করে আপনি আমাকে বলুন বৈষ্ণব কে এবং কি তার লক্ষণ। তার মন জেনে শ্রী चैतन्य महाप्रभु হেসে বললেন, लास्ट टाइम भी ऐसे प्रश्न किया था ना कुलीन ग्रामवासी, शायद सतराज खान ने प्रश्न किया था शायद लास्ट टाइम, कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वैष्णव। महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया था संगिनी शाप्रिया माता? हाँ प्रभु दिया था गौर देशों प्रचार करने के लिए। यस, सुषमा शर्मा जी। प्रभु जी बोले थे कि बंगाल में ही रह के वहां पर कृष्ण नाम का प्रचार करिए। प्रश्न ही सुना नहीं आपने। सुनीति राधिका माता जी। प्रभु जी रस्सी लाने के लिए बोले थे ना। नहीं नहीं, यस पंकज नेत्र जी। प्रभु प्रश्न फिर से पूछ लीजिए। महाप्रभु ने बताया कि जो एक बार हरि नाम लेता है वो वैष्णव होता है। यस, 72 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनका तबीयत ठीक नहीं है। ओके। तो सुबह से सिमिलर इस बार भी प्रश्न किया, के वैष्णव गीता लक्षण, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ वैष्णव, कैसे पहचानो। महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं, 72 नंबर श्लोक। कृष्ण नाम निरंतर जाहार बदने, कृष्ण नाम निरंतर जाहार बदने, সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে, से वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरणे। देखिए दोनों लास्ट टाइम का आंसर और इस टाइम का आंसर में क्या अंतर है। যার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণ নাম, তিনি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, তার শ্রী পাদ পদ্মের ভজনা করো। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে বৈষ্ণবের মুখে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হয়, তাকে মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব বলে চিনতে হবে। এই স্তরের ভক্ত অমল শ্রদ্ধা, সম্প্রতি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণকারী কনিষ্ঠ বৈষ্ণব থেকে শ্রেয়। কনিষ্ঠ ভক্ত কেবল ভগবানের নাম গ্রহণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু উন্নত স্তরের ভক্ত নাম গ্রহণে অভ্যস্ত
এবং গ্রহণ করে আনন্দ অনুভব করেন। जो कनिष्ठ से थोड़ा उन्नत है মানে মধ্যম, এই ধরনের উন্নত ভক্তকে বলা হয় মধ্যম ভাগবত। অর্থাৎ তিনি কনিষ্ঠ এবং উত্তম ভক্তের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। ঠিক আছে, किसी का कोई प्रश्न होने से तुरंत रोक दीजिएगा। সাধারণত মধ্যম অধিকারী ভক্ত ভগবানের বাণীর প্রচারক হন। কনিষ্ঠ ভক্ত বা সাধারণ মানুষের মধ্যম ভক্তদের পূজা করা উচিত, যিনি হচ্ছেন हरे कृष्णा प्रभु जी, वाणी प्रचारक मीन्स भगवान का वाणी को जो प्रचार करता है, भगवान का जो उपदेश को प्रचार करते हैं। ठीक है, के मध्यम अधिकारी He's a के बारे preacher. में बोला जा रहा है ना। हाँ, मदन अधिकारी इज ए टीचर। সাধারণত ইউজুয়ালি মধ্যম অধিকারীর ভক্ত ভগবানের বাণী প্রচারক হন। স্প্রেড দ্য নেম, স্প্রেড দ্য গ্লোরিজ অফ কৃষ্ণ। কনিষ্ঠ ভক্ত বা সাধারণ মানুষের মধ্যম ভক্তদের পূজা করা উচিত, যিনি হচ্ছেন মাধ্যম। যিনি হচ্ছেন মাধ্যম, সরি, ওয়ান হু ইজ আ মাধ্যম। মাধ্যম মানে महामजी माताजी प्रभु बीच में जो है, हाँ, जो माध्यम है एक साधारण मनुष्य को भगवान से मिलाने का। लाने के लिए। শ্রী উপদেশামৃত গ্রন্থে শ্রী রূপ গোস্বামী বলেছেন, প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম, অর্থাৎ মধ্যম অধিকারী ভক্তরা পরস্পরের প্রতি প্রণাম রূপ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ মধ্যম অধিকারী ভক্তরা পরস্পরের প্রতি প্রণতি রূপ ব্যবহার করবে। ये वो वाला श्लोक है, how to behave with all the different Vaishnavas। तो मध्यम अधिकारी एक दूसरे से क्या करेगा, सेम लेवल के साथ प्रणाम रूप व्यवहार करবে, पे ओबेसेंसेस, प्रणाम करेंगे। वो श्लोक किसी के आसपास है, किसी के आसपास है वो उपदेशामृतम ग्रंथ? हाँ प्रभु जी है बुक एक सेकंड। सरोज माता जी म्यूट। प्रभु जी कौन सा नंबर श्लोक बोल रहे, 6 नंबर? शायद 7 है। ये से शुरू होता है। निश्चय स्वभाव जनित वपुषश्चतुः से वो वाला। 7 नंबर, 5वां है प्रभु जी, 5वां है। हाँ, पढ़िए। कृष्णे यस गिरिम तम मन साद्रियेत यस, शाति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषा भजन विज्ञम अनन्य अन्य निंदादि शून्य हृदयम अपसित संग लभ्या। इसका अनुवाद पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे हरे चाहिए कृष्णा, यानी कनिष्ठ अधिकारी भक्त का मन का, कनिष्ठ अधिकारी भक्त को मन से आदर करना चाहिए, माने मन से प्रणाम करना चाहिए। नेक्स्ट, उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है हरे और- कृष्णा। और पढ़िए। और जो अच्छा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। ये है मध्यम अधिकारी भक्त, उनका दीक्षा हो गया और भगवान का सेवा में लगा हुआ है। वही एवं- बताया जा रहा था इस श्लोक में, बाकी चाहिए नहीं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके लिए यही सेकंड वाला। सेकंड वाला का क्या है, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। हाँ, तो यही लिखा है ना इधर, प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। हाँ, जी प्रभु वही जी। लिखा। 5वां श्लोक है प्रभु जी। 5वां श्लोक है। तो मध्यम अधिकारी को देखने से क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, वही लिखा है इधर। মধ্যকামী ভক্তরা পরস্পরের প্রতি প্রণাম রূপ ব্যবহার করবে। নিরন্তর কথাটির অর্থ হচ্ছে निरंतर जप करता है। यस, पिंकी माता जी। परस्पर का मतलब प्रभु जी? आपस में परस हो तो मालूम है आपस में, लेकिन
हरे कृष्ण प्रभु जी, एक दूसरे से। हाँ वो समझ रहा हूँ, हाँ, मैं वो तो समझ रहे हैं एक दूसरे से परस्पर माने, लेकिन राजीव प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या प्रभु बोले? यहाँ तो मध्यम अधिकारी को प्रणाम करेंगे, वो बात है या और नहीं, वही चीज बोला है। मध्यम अधिकारी भक्त एक दूसरे को अपने आप को प्रणाम करेगा, और कनिष्ठ अधिकारी भी उसको प्रणाम करेगा, मध्यम अधिकारी को। आई मीन दिस इज फॉर जनरल पब्लिक, जनरल नहीं, जनरल पब्लिक नहीं। मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी को प्रणाम नहीं करेगा, मध्यम अधिकारी एक दूसरे को प्रणाम करेगा, और कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी को प्रणाम करेगा, लेकिन मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी को नहीं प्रणाम करेगा। यानी कोई एक भक्त है और वो जब कोई कनिष्ठ अधिकारी से मिलता है तो उनको मनी मन में प्रणाम करेगा, वो जब कोई मध्यम अधिकारी से मिलता है तो उनको दंडवत प्रणाम करेगा, यही है ना? हाँ एकदम, यहाँ लिखा है आपस में। हाँ, तो आपस में का यही अर्थ है, one has to see from his angle। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हम लोग जैसे करते हैं प्रभु जी, वो वाला सही है कि नहीं? हम लोग जैसा करते हैं, कौन कैसा करता है, मैं मुझे कैसे मालूम? और एवरीबडी हैज टू सी फ्रॉम हिज एंगल। अगर आप किसी को देख रहे जो बीच बीच में कृष्ण नाम लेते हैं, तो इस श्लोक के अनुसार उनको क्या बोलना चाहिए? उनको प्रणाम करना चाहिए मनी मन में। लेकिन अगर आप किसी से मिलते हैं जिनका दीक्षा हुआ है और जो अर्चा विग्रह का सेवन करते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो वही परस्पर लेगा जाए तो एक दूसरे से मतलब कौन, एक दूसरे कौन, तो वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यस महामती माता जी, आपको बोलिए। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वो सामने वाला भक्त किस तरीके के हैं, मतलब वो सामने वाले उनके हिसाब से उनको हम दंडवत करेंगे, मन से प्रणाम करेंगे। हम कौन है वही हम बोलना चाह रहे थे। हम तो अपने आप को उस समय कनिष्ठ ही समझेंगे कि सामने वाला हमसे ऊपर ही है। हाँ, लेकिन हर एक क्षेत्र में नहीं समझ सकते। अगर आप किसी को कनिष्ठ को देख रहे हैं लेकिन आप नम्रता के लिए आप बोल रहे नहीं मैं तो उनसे भी कनिष्ठ हूँ, तो फिर आप ट्रीटमेंट उनको अलग से करिएगा। उनको उत्तम अधिकारी के स्तर पे भी कर सकते गलती से, क्योंकि उत्तम अधिकारी अगला वाला लिखा है, निंदादि शून्य हृदम ईप्सित संगलब्ध्य। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो इसमें ब्राह्मण और ये दीक्षित और ये बोला हुआ है, तो इसमें दीक्षा मतलब क्या ब्राह्मण दीक्षा ही है ना? यूजुअली क्योंकि अर्चा विग्रह का सेवन कर रहे हैं ना, तो बट ये पॉइंट मैं क्या बोला वो समझ में आया आप लोगों को? हाँ, यू हैव टू सी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके प्रभु जी, बहुत बार तो होता है कि भक्तों का बाहरी आचरण से तो पता नहीं चलता कि उच्चतर में है, मध्यम है या कनिष्ठ है। यहाँ तो क्या आचरण आप देखेंगे वो तो लिखा हुआ है इस श्लोक में। कोई अगर सोचिए जप नहीं करता लेकिन बीच बीच में हरे कृष्णा बोल दिया या 2-4 माला करता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको मनी मन में दंडवत प्रणाम कीजिए। जा रहे थे रास्ते में तो मेरे बगल से कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, नेटवर्क कट रहा है। अरे ओ अच्छा, हाँ अच्छा, इस श्लोक में मैंने टेम्पल से निकल रहे थे, एक पॉइंट को लेकर पीएचडी नहीं करके आगे भी बढ़ना है, बहुत श्लोक बाकी है। हाँ बोलिए सरोज माता। तो एक जेंट्स थे क्लब में, तो बगल से हरे कृष्णा इतनी सुंदर ट्यून में गाते हुए रास्ते में चल रहे थे, हम आपको क्या बताएं। हाँ तो उसको क्या समझना चाहिए प्रभु जी? तो ये क्या समझेंगे उसको? प्रणाम मनी मन में प्रणाम कर दीजिए, और क्या बोलेंगे? यू डोंट नो। हम तो सोच रहे थे आप उनको क्या कैटेगरी में देंगे? एक सेकंड के लिए आप उनको देखा, हो सकता है उत्तम अधिकारी हो सकता है मध्यम है, मालूम नहीं है, तो कम से कम मनी मन में प्रणाम से निकल रहे थे प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी आप बहुत सुंदर तरीका से गा रहे थे प्रभु जी, रास्ते में चल रहे थे ऐसे नॉर्मल गा रहे थे बहुत सुंदर तरीका से। ओके प्रभु जी, बाहर से हम किसी डिवोटी को आई डोंट थिंक सो वी कैन जज अबाउट दैट डिवोटी कितना। I am saying according to this shloka. ओके हाँ
इसीलिए इसको ज्यादा फ्राई मत कीजिएगा, इसको जस्ट इस श्लोका के अनुसार आप समझने का प्रयास कीजिए। इस श्लोका में रूपक गोस्वामी ने बोला है कि अगर कोई भक्त हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है कभी कभी बीच बीच में, तो उनको मन ही मन में प्रणाम कीजिए। अगर कोई निरंतर जप करता है, निरंतर, अभी प्रभुपाद बताएंगे निरंतर का अर्थ क्या है। अगर किसी का दीक्षा हो गया अर्च विग्रह का सेवन, तो उनको दंडवत करिए। तो according to this shloka, I know what you all are saying is right. How will we judge a person, that also a Vaishnava, in such a short time? But I am talking according to this Rupa Goswami shloka. নিরন্তর কথাটির অর্থ হচ্ছে যাতে অন্তর অর্থাৎ ব্যবধান নেই, यानी कोई ননস্টপ। কেউ যদি ভগবানের সেবায় ব্যতীত অন্য কিছু অভিলাষ করে, অর্থাৎ কেউ যদি কখনো কখনো ভগবানের সেবা করে এবং কখনো কখনো ইন্দ্রতৃপ্তির চেষ্টা করে, তাহলে তার সেবা প্রতিহত হবে। তাই শুদ্ধ ভক্তের কৃষ্ণ সেবার বাসনা ছাড়া আর অন্য কোনো বাসনা থাকা উচিত নয়। তাকে কর্ম ও জ্ঞানের স্তর অতিক্রম করতে হবে। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, অন্নবিলাসিত আসন্নং জ্ঞান কর্মাদনবৃতম অনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তির উত্তমা। এটাই শুদ্ধ ভক্তির স্তর। সকাম কর্ম অথবা মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কৃষ্ণ ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত বিলাস বর্জন করে কেবল অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত, সেটি উত্তম ভক্তি। অন্তর শব্দটির আরো একটি অর্থ হচ্ছে এই শরীর। অন্তর মানে নিরন্তর, নিরন্তর থেকে অন্তরটি নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। अंतर का दूसरा मीनिंग क्या है? এই শরীর। প্রভুপাদ জি বলছেন আত্মজ্ঞান লাভের পথে এই শরীরটি একটি প্রতিবন্ধক, কেননা তা সর্বদা ইন্দ্রতৃপ্তির প্রয়াসে ব্যস্ত। তেমনি অন্তর মানে ধন সম্পদ। ধন সম্পদ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার করা না হয় তাহলে সেটিও একটি প্রতিবন্ধক। অন্তর মানে জনতা, অর্থাৎ অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ করলে ভগবত ভক্তির বিনষ্ট হয়। তেমনি অন্তর মানে লোভ, জিহ্বা লাম্পট্য বা লৌল, এবং অন্তর মানে পাষণ্ডতা, যার ফলে ভগবানের শ্রী বিগ্রহকে শিলা, কাঠ, স্বর্ণ, পিতল প্রভৃতি ধাতু বলে মনে করা হয়। মন্দিরে ভগবানের শ্রী বিগ্রহ জড় নয়, তিনি পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তেমনি গুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করাও গুরুসু নরমতি, এটি একটি প্রতিবন্ধক। আর বৈষ্ণবকে জাতি বা পার্থিব বুদ্ধি করা উচিত নয়। চরণামৃতকে সাধারণ পানীয় জল বলে মনে করা উচিত নয়, এবং ভগবানের দিব্য নামকে সাধারণ শব্দ তরঙ্গ বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত বিষ্ণু তত্ত্বের আদি উৎস, এবং পরমেশ্বর ভগবানকে একজন দেবতা বলে মনে করা উচিত নয়। জড়ের সঙ্গে চেতন কারণকে জড়িয়ে ফেললে চিৎ জগৎকে জড় বলে মনে হবে এবং জড় জগৎকে চিন্ময় বলে মনে হবে। হরি বল, কিতনা সুন্দর প্রভুপাদ জি লেখা। যথার্থ জ্ঞানের অভাবে মূর্খ মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়। শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুকে ভিন্ন বলে মনে করা উচিত নয়। এইগুলি সমস্ত অপরাধ। एनी क्वेश्चन? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद हिंदी में समझा क्या दें। बोले हैं एंड में? हरे कृष्ण प्रभु जी। यानी भगवान का और जड़ वस्तु का एक समझना वो एक अपराध है। एंड में तो यही बोला है। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? कोई पर्टिकुलर चीज जो समझ में नहीं आया? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, अंतर का शब्द बार बार धन, जनता, लालच, नास्तिक ये सब बता रहे हैं। यस यस, हाँ, निरंतर, निर अंतर। एक तो बताया निरंतर जॉब करे, उसको बताया है। फिर निर अंतर, अंतर माने डिफरेंस। हम लोग बोलते हैं ना इसमें और इसमें क्या अंतर है, बोलते हैं ना, वैसे ही जो डिफरेंशिएट करता है और नहीं करता है तो वो गड़बड़ है। नहीं करता है जो, यानी
ये भगवान का सामग्री है और ये हमारा सामग्री है। ये शरीर एक प्रतिबंधक है। अगर क्यों भक्ति के लिए शरीर प्रतिबंधक है? क्योंकि शरीर हमेशा इंद्र तृप्ति करना चाहता है। तो ऐसे अंतर अंतर हर एक चीज के लिए अंतर दे श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर से समझाया। अंतर माने डिफरेंस। यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आप बोले ना कि हम लोग को भक्तों को देख के, उनके स्तर को देख के उनको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना हरे चाहिए। कृष्णा, ये प्रभुपाद जी, ये रूप गोस्वामी का इस श्लोक के अनुसार। यस हाँ आगे प्रभु बोलिए। जी। हाँ, तो आप जैसे हम लोग आपको बोलते हैं दंडवत प्रणाम, तो आप भी तो हम लोग को ऐसे बोलते हैं दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तो आपको तो पता होता है कि कौन सा भक्त किस स्तर पे है। तो फिर आप, जैसे हम लोग हैं, हम लोग विग्रह पूजा नहीं करते, लेकिन आप बोलते हैं, तो उसको कैसे समझे प्रभु? अरे कृष्णा, ये तो फंसा दिया। प्रभु जी, हम भी यही बात बोलते हैं, हम लोग कनिष्ठ भक्त हैं, हम लोग को मत बोला करिए दंडवत प्रणाम। आप लोग को तो चरण धुली आप सर पे लेना चाहिए। आप लोग इतना हाँ, अच्छा पर वो नहीं बोलना चाहिए, आप बोलते हैं, ये ये पूरा बात कैसे सही है। नहीं तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक तो है। क्यों पाप लगा रहे हैं प्रभु जी हम लोग को? ऐसे मत बोला करिए। मर्यादा आचरति श्रेष्ठा, तो जैसा प्रभु जी कहेंगे वैसे ही हम लोग को फॉलो करें। यहाँ हीरा हम देखते हैं पूरा माने ये पूरा टच स्टोन है पूरा। इधर सब इतना बढ़िया बढ़िया भक्त हैं। मुझे मेरा सौभाग्य आप लोग सबका दर्शन होता है डेली। तो हम लोग का सौभाग्य है प्रभु, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं यही बोल हम रहा लोग का हूँ सौभाग्य होता है, कि अमृत पीने को मिलता लोग इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं, नहीं तो ये- लोग भटके हुए रहते। प्रभु जी, एक प्रश्न। तो शिल प्रभुपाद विनीता माता जी, तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। ठीक है विनीता माता जी, ये श्लोक हाँ प्रभु जी। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। और भी बहुत क्राइटेरिया है वैष्णव को वैष्णव के साथ हाउ टू डिफरेंशिएट। जैसे हम लोग को मालूम है मध्यम अधिकारी का दूसरा भी डेफिनेशन है। बहुत जगह अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ है ना, उत्तम कनिष्ठ मध्यम का। तो ये एक डेफिनेशन है और उनके साथ कैसे आचरण करना चाहिए वो दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को मालूम है इस्कॉन ऐसा एक हॉस्पिटल है जहां सब डॉक्टर भी है और पेशेंट भी है ना? कौन कौन पेशेंट है हाथ उठाइए इस हॉस्पिटल में। हाँ, तो अभी लग रहा है कि हम इधर टीचरगिरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद मैं भी अपना टीचर शिक्षा गुरु मोहन गुरु प्रभु का क्लास में जाता हूँ और क्लास करता हूँ। तो उस समय मैं पेशेंट हो गया। अभी मैं लग रहा है कि हम डॉक्टर है, लेकिन एक्चुअली हम लोग सब पेशेंट है। डॉक्टर कौन है? श्रील प्रभुपाद, डॉक्टर श्रील प्रभुपाद। ओके, करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग सब एक ही स्तर पे है, उसी सब एक दूसरे को दंडवत प्रणाम। ओके, उसीलिए परस्पर देवा है, परस्पर। हरे कृष्णा बोल जी, एक प्रश्न। अरे अभी हमको फंसाएंगे आप लोग सब आप लोग ना, जब क्लास होता है सब सोचते हैं कैसे गूगली फंसाने वाला नहीं है। अच्छा, थैंक यू, बोलिए। জড়ের সঙ্গে চেতন কারণকে জড়িয়ে ফেললে চিৎ জগৎকে জড় বলে মনে হবে এবং জড় জগৎকে চিন্ময় বলে মনে হবে। এটা একটু এক্সপ্লেন করুন। वंडरफुल स्टेटमेंट बाय श्रील प्रभुपाद। व्हाट इज स्पिरिचुअल एंड व्हाट इज मटेरियल, ये अगर कोई कंफ्यूज कर देगा। हाँ, कोई जैसे एक प्रभुपाद को उदाहरण दिया इधर गुरुदेव को सोचिए, कोई अगर सोचा कि गुरुदेव तो जस्ट हमारे जैसे कोई है व्यक्ति। नो, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, सो स्पिरिचुअल। ये अगर कोई मिक्स कर देगा, हमारे जैसे सोच लेगा, तो एक उदाहरण दे रहा हूं, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। फिर जड़ को चेतन और चेतन को जड़ समझ लेगा। चेतन को जड़ माने और जड़ को चेतन माने, ये जो इंद्र तृप्ति हो रहा है इसी को सोचेगा कि यही तो दिव्य है। वाह, जो इंद्र तृप्ति जब करेगा बोलेगा क्या लाइफ है, कितना आनंद में है हम। यही तो दिव्य है, यही तो जीवन का उद्देश्य है। इंद्र तृप्ति को जीवन का उद्देश्य समझ लेगा। ये है जड़ को चेतन समझना, और चेतन को जड़ समझना। तो चेतन वस्तु, चेतन व्यक्ति है, उनको सोचेगा, अपने आप से तुलना करेगा। ये एक सिंपल उदाहरण है। ओ कृष्णा, यस, संगीत श्यामप्रिया माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम पे आए, बोलने वाली नहीं थी, मगर आज सुबह का बात है, 5:30 बजे ना, मैं स्नान करके तिलक उलक लगा के बाहर तुलसी जी को लेने के लिए खिड़की पे की, तो फिर पाखी को देख के ना थोड़ा 1 मिनट के लिए रुक गई। तो फिर देख रही थी, पाखी हाँ पाखी था,
अच्छा तो फिर रुक गए तो ऐसे पकड़े हुए थे तुलसी महारानी को, ऐसे जैसे गोदी टाइप ऐसे पकड़ के बस देखने लगे। तो सामने आंगन में एक बहुत ही एजेड 60 ईयर्स की है लगभग, तो उठी बाथरूम के लिए उठी, फिर मेरे को देखी, फिर ध्यान से देखी, मेरा नजर मिल गया तो बिल्कुल हृदय से हाथ जोड़ के मतलब खूब अच्छे से प्रणाम की। हम बोले हरे कृष्णा, तब तो फिर अंदर चले गए। तो मेरे मन में आया कितनी जिठानी लगती है, मतलब कि है बंगाली है, नॉनवेज खाती, मतलब मटेरियल है, फुल्ली मटेरियल है, लेकिन प्रणाम जो की प्रभु इतना श्रद्धा से की, तो मेरे मन में आया कि हम तो इतने छोटे हैं उम्र में, और वो मेरे को प्रणाम की। थोड़ा सा मेरे अंदर हुआ कि क्यों मेरे को प्रणाम की, हम वैष्णव हैं इसलिए। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रभु जी एक गर्व भी आया था मेरे अंदर, फिर तुरंत भगवान के सामने बोले इस जगह पे हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग रिटर्न नहीं कर पाते, जैसे उन्होंने तो मतलब मेरे को प्रणाम करके अपना अंदर चली गई, तो वहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए प्रभु? ओके, आज वो का बहुत ही शॉर्ट में बता रहा बॉडी हूँ, तुरंत वो मनोषा हमने पूजा हरे वाला। कृष्णा बोला जोर से। तो अगर कभी ऐसे हरे कृष्णा हम लोग को ये सम्मान का अगर थोड़ा थोड़ा अगर क्योंकि अच्छा शुरू से लगे जिठानी मान के चले, उनका पाँव छूते, उनको सम्मान देते। आज बहुत हृदय से मतलब की, तो थोड़ा सा जिठानी है मेरे को ऐसे की। तो अगर अगर कभी ऐसे हम लोग को थोड़ा प्राउड हो जाए, फीलिंग आए कि हम लोग वैष्णव है, हम लोग साधु है, कितना हम लोग सबसे अलग है, सबसे श्रेष्ठ हैं, हम लोग भगवान के भक्त हैं, इसमें अगर थोड़ा जड़ जागतिक अगर ईगो आ जाए तो तुरंत वो मनोषा देवी एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है? ये है मेरा उत्तर। ओके, आगे बढ़े। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, ये अंतर का अर्थ कई अलग अलग बताया गया है। हाँ हाँ कैसे कैसे अलग अलग समझेंगे सब, जैसे क्वेश्चन में कैसे आंसर में कौन सा मतलब उत्तर होगा वो सही? कौन सा लालच दिया हुआ मुझे क्या तो मालूम नहीं कैसे हम उत्तर बोलेंगे मगर क्वेश्चन को छोड़िए, काउट को छोड़िए, समझ में आया कॉन्टेक्स्ट, तात्पर्य समझ में आया, अंतर क्या बोलना चाह रहे हैं? निरंतर, निरंतरता के प्रभुपाद ने अभी नींव को हटा दिया, अंतर लाया, अंतर को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। यानी अंतर माने डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट तो करना चाहिए, डिफरेंशिएट तो करना चाहिए हर एक भक्त को। जैसे इस श्लोक में रूप गोस्वामी भी बताया, जो कनिष्ठ है उसको क्या करना चाहिए? मन से प्रणाम, जो मध्यम है उनको दंडवत प्रणाम, जो उत्तम है उनका सेवा करना चाहिए, उनका संगत लेना चाहिए। तो डिफरेंशिएट तो करते हैं हम लोग। अगर सोचिए सामने महाराज जा रहे हैं, हम लोग दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन सामने कोई क्लास का मेंबर जा रहा है, क्या हम लोग दंडवत प्रणाम करेंगे? नहीं करेंगे। डिफरेंशिएट तो करते हैं हम लोग। तो ये अंतर में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा अच्छा सुंदर चीज है कि कहाँ डिफरेंशिएट करना चाहिए, कहाँ डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद समझा दिया। ठीक है। और प्रभु जी एक चीज है, आप जैसे छोटों को भी हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, मतलब बच्चे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, आप ये भी बोलते हैं, तो हम लोग आपका ही मतलब करते हैं, तो बहुत सब बोलते हैं हम तो आपके बच्चे जैसे, हमको क्यों माता जी बोल रहे हैं, तो ये भी हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन आप ही से हम लोग सीखे हैं ये चीज। मतलब माता जी उन लोग को पसंद नहीं आता बुलवाना, मतलब है वैष्णव शुद्ध वैष्णव लोग हैं, माता जी मत बोला, लेकिन प्रभु आप बोलते हैं सबको, कृष्णिका माता जी, धन प्रभु जी, तो ये चीज भी हम लोग को मतलब क्या तो ये हम लोग आत्म स्तर पे प्रभु श्रील प्रभुपाद कितना बार तात्पर्य में बताया है, हम लोग आत्मा स्तर पे उनको सम्मान देते हैं, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल, भगवान के अंश हैं, भगवान के संतान है, उस हिसाब से फॉर दैट वैष्णव है, भगवान का नाम जप करते हैं। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हर एक व्यक्ति को अपनी को बोलते हैं। आप लोग को मालूम है ये बात? हर एक व्यक्ति को आपनी चिट्ठी लिखते थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, आपनी हमारे वंडरफुल। उनका जो बंगाली स्टैंडर्ड तो बहुत हम लोग को पढ़ने नहीं आता है, जब कभी कभी उनका पॉकेट से आता है। सो हर एक को बहुत सम्मान करके रेस्पेक्ट करके देना चाहिए, हर एक, एवरी डिवोटी, एवरी पर्सन। हम बंगाल में एक बहुत एक चीज देखा, हमको वो अच्छा नहीं लगता है, हम देखते हैं लोग एक दूसरे को तू ही करे कथा बोले। ये बंगाल में एक कल्चर है ना, तू ही तुम्ही अपनी। हम बहुत बार देखा है, कोई सोचिए कोई निम्न काम कर रहा है, कोई सोचिए जमादार है, ए तू जगह पैसा कर दे तो
हाँ, तो बिकॉज ही इज अ जमादार, तो तू ही आ जाता है, तू ही, यानी हिंदी में जिसको तू बोलता है ना, तो दिस इज रिडिकुलस तो वी शुड लर्न दिस फ्रॉम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। सबको अपनी अपनी, एवरीथिंग एवरीबडी अपनी अपनी अपनी, आत्मा के स्तर पे सबको सम्मान देता है। हम लोग को भी वैसा करना चाहिए। मैक्सिमम बहुत स्नेह है घर में तो तुम ही मैक्सिमम, तुम ही इज आउट ऑफ अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन, तो you should be, yes, पंकज नेत्रवचिश प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, এই अंतर शब्द যেটা হয়েছে মানেটা মানে এটা হচ্ছে কি যে মানে जो चीज भगवान से अलग रखता है वो सब कारण। हाँ, क्या क्या जो चीज भगवान से अलग रखता है, मतलब जो भक्ति से हम लोग को अलग रखता है, दूर रखता है, वो सब रीजन भी हो गया। अंतर मतलब वो दूरी। यस, ভক্তি সন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন, নামৈকং যস্য বাচি স্মরণ পদ গতম ইত্যাদি ইত্যাদৌ দেহ দ্রবীণাদি নিমিত্ত পাষণ্ড সন্বেচঞ্চ দশ আচ্ছা 10 অপরাধ লক্ষন্তে পাষণ্ডময়াতং তেষং। মায়াবাদীরা জ্ঞানের অভাবে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে অপূর্ণ রূপে দর্শন করে এবং সেটি একটি অপরাধ। শ্রীমদ্ ভাগবতে মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণবের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, মায়াবাদীরা কি করেন, বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবকে অপূর্ণ রূপে দর্শন করে। শ্রীমদ্ ভাগবতে মধ্যমাধিকারীকে কি বলা হয়েছে, ঈশ্বরে তদ্দিনেষু বালিশেষু দিশৎসু চ প্রেম মৈত্রী কৃপা উপেক্ষা ইয় করোতি স মধ্যমা। মধ্যমাধিকারী ভক্ত হচ্ছেন যিনি ভগবানের প্রতি প্রেম পরায়ণ, ভগবত ভক্তির প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন, অনভিজ্ঞ বালিশদের প্রতি কৃপা পরায়ণ এবং ভগবত विद्वेषीদের প্রতি উপেক্ষা। এই চারটি मध्यम अधिकारी वैष्णवेर वैशिष्ट्य। तो ये देखिए, अभी दूसरा डेफिनेशन दिया हुआ है मध्यम अधिकारी का। पिछला वाला डेफिनेशन क्या था रेखा माता जी, मध्यम अधिकारी कौन है? जो भगवान के एक भी नाम ले ले। नहीं, पिछला डेफिनेशन था दीक्षा हो गया है और जो अर्च विग्रह का सेवन करता है। अभी क्या दिया है, मध्यम अधिकारी वो है जो डिफरेंशिएट करता है, कैटेगराइजेशन करता है, और 4 कैटेगरी है, कनिष्ठ, मध्यम माने उनके स्तर पे जो है, और उत्तम उनके ऊपर जो है, और चौथा क्या है, जो भगवत विद्वेषी है, यानी जो विद्वेषी समझ रहे हैं आप लोग, जो एंटी कृष्ण कॉन्शियस है। तो जो भगवत विद्वेषी उनको क्या करता है, उपेक्षा, यानी इग्नोर करता है, जो उल्टा पुल्टा बोलता है, कभी कभी भगवान के बारे में, इस्कॉन के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, प्रभुपाद जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, ये सब वो नेट में बहुत मिल जाएगा। तो ये सब लोग को क्या करना चाहिए, उपेक्षा, उन लोग का मुंह नहीं देखना चाहिए, उन लोग से बातें नहीं करना चाहिए, इग्नोर। और जो उनसे कनिष्ठ है तो उनको क्या करना चाहिए, कृपा, उनको समझाना चाहिए, भक्ति के बारे में बोलना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। और जो उनके स्तर पे, यानी वो भी मध्य और ये भी मध्य, उनको क्या करना चाहिए, मैत्री, प्रेम मैत्री, उनसे मित्रता रखना चाहिए। और जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं उनसे क्या करना चाहिए, उनका संग लेना, इस संगत में रहकर उनसे सीखना चाहिए। करेक्ट। तो ये अलग डेफिनेशन हो गया मध्यम अधिकारी का, यानी मध्यम अधिकारी डिफरेंशिएट करता है। मध्य लीलाয় সনাতন শিক্ষায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তির অধিকারী, উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারে। শ্রদ্ধাবান ভক্তরাই ভগবত ভক্তির অধিকারী, তার শ্রদ্ধার মাত্রা অনুসারে তিনি उत्तम मध्यम एवं कनिष्ठ स्तरेर वैष्णव बोले विवेचित हन। ये और एक नया डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन में क्राइटेरिया क्या है, श्रद्धा का मात्रा, जो ज्यादा श्रद्धा है उत्तम, थोड़ा मध्यम, एकदम कम कनिष्ठ, ठीक है।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান মধ্যম অধিকারী সেই মহা ভাগ্যবান। যিনি শাস্ত্র যুক্তি না জানলেও ভগবানের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাবান সেই অত্যন্ত ভাগ্যবাन व्यक्ति मध्यम अधिकारी स्तरे अधिष्ठित। ये और एक डेफिनेशन कहां से? चैतन्य चरितमृत मध्य लीला से। किसका डेफिनेशन? खुशबू माता जी, मध्यम अधिकारी का। ठीक है, देखिए अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ, सब सही है। रोति प्रेम तारतम्य भक्त तरतम। রতি এবং প্রেম ভগবত ভক্তির চরম লক্ষ্য। ভগবানের প্রতি রতি এবং প্রেমের মাত্রার তারতম্য অনুসারে ভক্তির বিভিন্ন স্তর কনিষ্ঠ মধ্যম এবং উত্তম निर्धारित হয়। ये और एक डेफिनेशन, करेक्ट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? भगवाনের প্রতি রতি, রতি মানে প্রেম এবং প্রেমের মাত্রা। तो जिनका बहुत ज्यादा है वो क्या है? उत्तम। जिनका थोड़ा है मध्यम, जिनका कम है एकदम वो है कनिष्ठ। डिफरेंट डेफिनेशन, ठीक है। মধ্যম অধিকারী ভক্তের শ্রী নামের প্রতি প্রীতি বর্ধিত হওয়ার, শ্রী নামকে পরম প্রীতির সঙ্গে অনুক্ষণ কীর্তন যজ্ঞে আরাধনা করে ভগবানের প্রেম স্থাপন করে। অপ্রাকৃত শ্রীনাম অনুক্ষণ প্রীতি বিশিষ্ট হয়ে অনুশীলন করতে করতে তিনি নিজেকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস বলে বুঝতে পারেন। কে? মধ্যম অধিকারী কথা বলা হচ্ছে। আবার কখনো কখনো শ্রী নামে অপেক্ষাকৃত স্বল্প রুচি বিশিষ্ট ভক্তকে তার অপ্রাकृत स्वरूप बुझिए दिए कृपा करें। यानी जो कनिष्ठ है उनको नाम का महिमा समझा देता है। ठीक है, कौन? मध्यम अधिकारी की बात किया जा रही है। शुद्ध भक्त भगवाনের সম্পূর্ণ প্রীতি রহিত বিদ্বেষীদের কৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপ অনুভূতি রহিত আবৃত চেতন বৃত্তি ও কেবল প্রাকৃত বলে জেনে ताদের संग त्याग करे। जो विद्वेषी है, जो उल्टा पुल्टा बोलता है, उन लोग को मध्यम अधिकारी क्या करता है? त्याग करता है, उपेक्षा। हम लोग को याद रखना है, जो जो उल्टा पुल्टा बोलता है कृष्ण कॉन्शियस के बारे में, इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में, उन लोग से हम लोग को बात नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्तिर उपादान বা উপকরণগুলিকেও অপ্রাকৃত বলে বুঝতে পারেন। यानी भगवान से रिलेटेड कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, वो अप्राकृत, वो चिन्मय है। मध्यम अधिकारी उनको बहुत सम्मान करता है, वो या उस वस्तु को बहुत सम्मान करता है जो भी भगवान से जुड़ा हुआ है। किसी का कोई प्रश्न है? 73 नंबर श्लोक। বর্ষান্তরে পুনতারা ঐচ্ছে প্রশ্ন কইল। শান্তরে পুনতারা পুনতারা ঐচ্ছে প্রশ্ন কইল। হইছে প্রশ্ন কইল। বৈষ্ণবের তারতম্য বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল। প্রভু শিখাইল। তার পরের বছর কুলিন গ্রামবাসীরা আবার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। আগে নেক্সট ইয়ার সেম প্রশ্ন কিয়া, বৈষ্ণব कैसे চিনেंगे। এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বিভিন্ন স্তরের বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন। যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম। 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 তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান। তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণবে প্রধান। চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, যাকে দেখলে মুখে কৃষ্ণ नाम আসে ताकि उत्तम वैष्णव बोले जिनो। री बोला, उनको देखने से हम लोग को कृष्ण नाम मुंह में आ जाएगा। वो एकदम उत्तम अधिकारी। सो अलग अलग साल में अलग अलग डेफिनेशन दिया। पहला साल में कनिष्ठ अधिकारी का, दूसरे साल में मध्यम अधिकारी का। और प्रभुपाद तो मध्यम अधिकारी के बारे में कितना डिटेल में बता दिया। और अभी फिर से कुलीन ग्रामवासी एक ही प्रश्न किया, लेकिन इस साल महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? उत्तम अधिकारी का लेवल में उत्तर दिया कि जिनको देखने से कृष्ण नाम आ जाते हैं साधारण मनुष्य के मुंह में। जैसे प्रभुपाद जाते थे, प्रभुपाद जब जाते थे तो
प्रभुपाद या सोचिए महाप्रभु जब कीर्तन करते करते जाते थे ना साउथ इंडिया में, और उनको देख के सब कीर्तन कर लेता था, कृष्ण नाम ले लेता था। तो वो एकदम उत्तम श्रेष्ठ भक्त में हम लोग को समझना चाहिए। और कोई उदाहरण आप लोग को आ रहा है यार? गुरु महाराज सब यस एब्सोल्युटली, सारा विश्व में प्रचार कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और उनको देखने, देखो हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, और देखो हरे कृष्ण सन्यासी। इस तरह तो से एक बार आया था व्हाट्सएप में कि जय पताका स्वामी गुरु महाराज जो थे वो मतलब हॉस्पिटल में बोल रहे थे कि मेरे को इसलिए भगवान ने ये सब दिया है क्योंकि मैं यहाँ भी प्रचार, क्योंकि सब बाहर प्रचार करते हैं तो मेरे को यहाँ भी प्रचार करना है। तो उनके संपर्क में जो आ रहा था वो सब सोला माला में लग जा रहे थे। हरी बोल। हमको याद है नर्स लोग सब हो रहा था, ही मेड मी चैंट, नर्स लोग ही मेड मी चैंट हरे कृष्ण, यस लोग बोल रहा था। तो देखिए उत्तम अधिकारी का डेफिनेशन, तात्पर्य শুলে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে বৈষ্ণবকে দেখলে দ্রষ্টার মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষ্ণ নাম আসে তাকে স্বরূপ সিদ্ধ মহাভাগবত বলে জানবে। उनको देखने से अगर किसी का मन में कृष्ण नाम आ जाता है, তিনি সর্বদা তার কৃষ্ণ ভক্তিময় কর্তব্য সম্বন্ধে অবগত এবং তার চেতনা অনাবৃত। তিনি নিরন্তর শুদ্ধ প্রেমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরত। ভগবানের প্রতি এই প্রগাঢ় প্রেমের ফলে তিনি সর্বদা অপ্রাকৃত উপলব্ধিতে জাগ্রত। তিনি জানেন যে কৃষ্ণ ভক্তি সমস্ত জ্ঞান এবং কর্মের ভিত্তি। তার দৃষ্টিতে সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। हरि बोल। देखिए मध्यम अधिकारी डिफरेंशिएट करता है, ये कृष्ण से संपर्क युक्त है, ये कृष्ण से संपर्क युक्त नहीं है, अंतर निरंतर, याद है महामजी माती अंतर करता है। लेकिन उत्तम अधिकारी भक्त हर एक वस्तु हर एक व्यक्ति को भगवान से संपर्कित कर लेता है। देयर इज नथिंग, उनको लगता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है। लेकिन मध्यम अधिकारी भक्त डिफरेंशिएट करता है। प्रभु यहाँ पे लिखे है कि चूंकि वह जानता है कि कृष्ण भावना अमृत ज्ञान और कर्म का आधार है, इसका मतलब क्या होगा? कौन सा? ये अभी आया नहीं हम लोग शायद, ये सेंटेंस आपने जो पढ़ा अभी तक आया नहीं, आगे पढ़ लिया शायद। तेरे निरंतर शुद्ध प्रेम, सेकंड सेंटेंस है क्या? हाँ, তিনি সর্বদা তার কৃষ্ণ ভক্তিময় কর্তব্য সম্বন্ধে অবগত এবং তার চেতনা অনাবৃত। ये तो ठीक ही है। তিনি নিরন্তর শুদ্ধ প্রেমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরত। ভগবানের প্রতি এই প্রাগর প্রেমের ফলে তিনি সর্বদা অপ্রাকৃত উপলব্ধিতে জাগ্রত। अभी तक आए नहीं। তিনি জানেন যে কৃষ্ণ ভক্তির সমস্ত জ্ঞান এবং কর্মের ভিত্তি। ये वाला है क्या? हाँ, यही वाला प्रभु। हाँ, so it is the basis of समस्त ज्ञान एवं कर्मेर भित्ति, यानी समस्त ज्ञान कृष्ण भक्ति में है। इट इज द बेसिस। कृष्ण भक्ति जैसे हम लोग को मालूम है, भागवतम पढ़ने से ब्रह्मांड का ऐसा कुछ भी नहीं है जो भागवतम में ज्ञान नहीं दिया हुआ। तो अगर कोई कृष्ण भक्ति में उसको हर एक चीज का ज्ञान रहता है, और एवं कर्मेर भित्ति, उसका जो भी कर्म है वो सुप्रीम कर्म माना जाता है क्योंकि वो भगवान से जुड़ माने रिलेटेड है, संपर्कित है। सो उनका हर एक ज्ञान और उनका हर एक माने इट इज ऑल बेस क्या है? कृष्ण भक्ति। उसी का ये हमको समझ में आ रहा है। তিনি জানেন যে কৃষ্ণ ভক্তি সমস্ত জ্ঞান এবং কর্মের ভিত্তি। ভিত্তি मीन्स फाउंडेशन। तो जो भी कर्म जो भी ज्ञान हम लोग अर्जन करेंगे किसके लिए? कृष्ण के लिए, क्योंकि वही फाउंडेशन है। তার দৃষ্টিতে সবকিছু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু কৃষ্ণ। তার শ্রীমুখে শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম সুষ্ঠুভাবে অনুক্ষণ করতে কীর্তিত হতে থাকেন। हमेशा वो कृष्ण नाम मुंह में उच्चारण करते हैं। এই ধরনের মহাভাগবত বৈষ্ণব তার অপ্রাকৃত দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পান মায়ার প্রভাবে কে নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে এবং তিনি কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত বিতরণ করে সেই সমস্ত বদ্ধজীবদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করে জাগ্রত করেন। তার ফলে জীব জাড্য থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়। তারা এক একজন ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করতে পারেন। হরি बोल। इतना क्षमता, इतना प्योरिटी है, এক একজন ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করতে পারেন, এমনই তাদের অলৌকিক শক্তি। তাই শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে
লোহাকে যাবত স্পর্শী হেম নাহি করে তাবত স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে। স্পর্শ প্রভাবে যতক্ষণ না লোহাকে সোনায় পরিণত করে, স্পর্শ প্রভাবে যতক্ষণ না লোহাকে সোনায় পরিণত করে ততক্ষণ স্পর্শমণি মানে পারসমণি। বইটা দেখেছেন পারসমণি? वो टच स्टोन जिसको भी टच करता है लोहा खुल्ड हो जाता है। ततक्षण स्पर्शमणि चेना जाए ना। जब तक कोई स्पर्शमणि कब कैसे पता चलता है? जब कोई साधारण व्यक्ति को वो भक्त में परिवर्तन कर देता है। अभी तो ऐसा कोई पत्थर होगा ही नहीं कलयुग में। हाँ? तो कलयुग में तो ऐसा पत्थर मिलेगा ही नहीं, है ना श्रील वैष्णव? प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी वैष्णव लोग है ना? सारे जब वैष्णव तो वैष्णव लोग सारे वैष्णव तो स्पर्शमणि टच स्टोन है। जब नॉर्मल व्यक्ति के संस्पर्श में आता है तो नॉर्मल व्यक्ति लोहा क्या हो जाता है? सोना। कृष्ण भक्त सोना बन जाता है। हरि बोल। प्रभु जी आप भी हैं। आप लोग सब है। आप लोग के स्पर्श में मैं थोड़ा भजन कीर्तन कर पा रहा हूँ। हम लोग कचड़ा थे, हम लोग लोहा भी लेते, कचड़ा थे आपसे। देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं देखिए, ফলের দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিশ্রুতির দ্বারা নয়। রেজাল্ট টক্স ফর ইটসেলফ। মহাভাগবত জঘন্য জড় জীবনে আবদ্ধ মানুষদের পর্যন্ত भगवत भक्ति परिणत करते पारे। एकदम थर्ड क्लास अगर कोई जीवन कर रहा है उसको भी अगर कोई वैष्णव के संस्पर्श में आ जाए पूरा परिवर्तन हो सकता है। সেটি হচ্ছে মহাভাগবতের লক্ষণ। মহাভাগবত যদিও সাধারণত প্রচার করেন না, क्योंकि महाभागवत माने यहाँ उत्तम अधिकारी का बात किया जा रहा है, वो प्रचार नहीं करते है उतना। प्रचार कौन करता है? मध्यम अधिकारी। তবে জীব উদ্ধারের জন্য মহাভাগবত মাধ্যম ভগবতের স্তরে নেমে আসতে পারে। लेकिन जीव उद्धार करने के लिए महाभागवत भी हम लोग को मालूम है, आगे भी हम लोग पढ़ा है, उत्तम अधिकारी से मध्यम अधिकारी स्तर पे आ जाता है प्रचार करने के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए। প্রকৃতপক্ষে মহাভাগবত কৃষ্ণ ভক্তির প্রচারে সর্বতভাবে উপযুক্ত, কিন্তু তিনি বিচার করতে পারেন না কোথায় কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করা উচিত এবং কোথায় করা উচিত না। इसलिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये दो माताल के पास भी चला गया प्रचार करने के लिए। हम लोग जा पाएंगे? हम लोग जाएंगे? नहीं। हम लोग क्या कोई शराब खाने में चला जाएंगे प्रचार करने के लिए? नहीं बाबा उधर नहीं जाना है। लेकिन उन लोग कर सकता है क्योंकि उन लोग महाभागवत स्तर पे है। কোথায় কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করা উচিত এবং কোথায় করা উচিত না তিনি মনে করেন যে সুযোগ দেওয়া হলে সকলেই কৃষ্ণ ভক্তি গ্রহণ করতে পারে। কনিষ্ঠ এবং মধ্যম অধিকারী ভক্তদের কর্তব্য মহাভাগবতের বাণী শ্রবণে এবং সর্বতভাবে তাদের সেবা করতে সর্বদা উৎসুক থাকা। কনিষ্ঠ এবং মধ্যম অধিকারী ভক্ত মহাভাগবতের সঙ্গ প্রভাবে ধীরে ধীরে উত্তম অধিকারী স্তরে उन्नीत होते पारे। हमको ये भी लगता है कि आप लोग जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है कुछ दिन आगे श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल के साथ, हर ग्रेस रामलीला माता जी के साथ, आप लोग जरूर आप लोग का कुछ ना कुछ अनुभूति हुआ होगा। अभी बोलने का दरकार नहीं है, टाइम बहुत कम है और 20 लोग हैं, कि आप लोग देखे हैं कि अरे बाप रे बाप ये तो हम कर ही नहीं पाते, माता जी कैसे कर लिया। सोचिए किसी ऐसा व्यक्ति को अप्रोच कर दिया और बेच भी दिया बुक भगवत गीता। आप लोग सोच रहे होंगे अरे बाप रे बाप ये तो हम कभी नहीं कर पाते भाई, हम लोग तो करके नहीं, ऐसा हुआ होगा। तो ये इन लोग के द्वारा संभव है बिकॉज दे डोंट डिफरेंशिएट। हम लोग सोचेंगे नहीं इसको क्या देंगे, इसका पास तो पैसा ही नहीं होगा, ये कभी खरीदेगा नहीं, ऐसे कभी हुआ है ना, ये नहीं खरीदेगा। लेकिन अरे बाप रे ये भी खरीद लिया और महाभागवत उनके पास जाकर बोला तो खरीद लिया। तो ऐसे अलौकिक चीज उन लोग कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु स्निग्धा थी उनके संग में, तो बोली उनके अंदर बहुत सारा दर्द भी है, मतलब कि कैसे मतलब रास्ता में लोग रहता है, इन लोग क्या करें कैसे इन लोग को, मतलब सबसे और फॉरनर माता जी से बोलती थी कि वहां पे बहुत मतलब ऐसे लोग, उन लोग को हम लोग कैसे उद्धार करें, उन लोग तक कृष्ण भक्ति कैसे ले जाए। मतलब इतना स्निग्धा बहुत कुछ सीख के आई प्रभु उनका संस्पर्श में रह के। बोले कि माता जी के अंदर इतना मतलब व्यथा भी है कि मतलब कैसे सबका उद्धार हो। बहुत पतित लोग कोलकाता में हैं, उनके अंदर बहुत दुख है इस बात का। ये सुमना गौरंगी माता जी प्रभु हम लोग अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए, एक लड़की थी जो एकदम पगली सी थी, मतलब हम लोग को लग रहा था मेंटली डिस्टर्ब है,
लेकिन उन्होंने भगवत गीता ली और वो भी पूरा पैसा देके, कहीं कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया और लिया। तो हम बोले ये पढ़ेगी या ना पढ़े, लेकिन इन्होंने भगवत गीता का स्पर्श कर लिया तो एक दिन ये भगवान की भक्ति इनको जरूर मिलेगी। ओके, सो अलग अलग साल में महाप्रभु ने अलग अलग डेफिनेशन दिया कि कैसे हम लोग वैष्णव को पहचानेंगे। ओके, हरे कृष्णा बाबू जी, अभी बोलो। आज तो कंप्लीट होगा नहीं। कितना नंबर श्लोक तक है? तो 87 है सर। 87 तक है, एक मिनट देख लेते हैं। 76 प्रभु जी बोले ना। 86 तक है प्रभु जी। फटाफट हो जाएगा, इसके बाद कोई तात्पर्य नहीं है। इसके बाद एक लाइन का श्लोक है, बस हमको और 10 मिनट दीजिए। ओके, মহাভাগবতের সঙ্গ বিশ্লেষণ করে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে সর্বভূতেষু জপস 74 सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भागवती आत्मनि एषा भागवत उत्तमा। অত্যন্ত উন্নত ভক্ত সবকিছুর মধ্যেই সমস্ত আত্মাদের আত্মপরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ফলে তিনি সবকিছুই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখেন এবং উপলব্ধি করেন যে অস্তিত্বশীল সবকিছুই ভগবানের মধ্যে নিত্য অবস্থিত। শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, শাস্ত্রের যুক্তে সুনিপুণা দৃঢ় শ্রদ্ধায় যার, শাস্ত্রে যুক্তি সুনিপুণা দৃঢ় শ্রদ্ধা যার, উত্তম অধিকারী সেই তার সংসার। শাস্ত্র যুক্তিতে যিনি সুনিপুণ এবং ভগবানের প্রতি যার শ্রদ্ধা সুদৃঢ়, তিনি উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব। তিনি সারা জগৎকে উদ্ধার করে কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত করতে পারেন। ভগবান, ভক্তি ও ভক্ত এই ত্রিবিধ বস্তুতে মহাভাগবতের অপ্রাকৃত অসংকুচিত প্রেমময়ী দৃষ্টি, তাছাড়া তার অন্য কোনো দর্শন নেই। তার দৃষ্টিতে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত। তিনি মধ্যম স্তরে নেমে আসেন সকলকে কৃষ্ণ ভক্তি স্তরে উন্নীত করার জন্য। 75 নম্বর শ্লোক, ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ। बानू माता जी, भानु माता जी भाग गया, राधा माता जी है? आगे रखा नहीं भाग नहीं गया है। हम पढ़ रहे, क्रम करी कहे प्रभु वैष्णव है। हाँ बोलून। क्रम करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण। বৈষ্ণব বৈষ্ণব তর আর বৈষ্ণবতম। वैष्णव वैष्णव तर আর বৈষ্ণব বতম। এইভাবে ক্রম অনুসারে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণবদের লক্ষণ বিশ্লেষণ করে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর এবং বৈষ্ণবতম এই তিনটি স্তর নির্ধারিত করলেন। सबको समझ में आया? गुड, बेटर, बेस्ट। पहला साल में गुड बोला, अगला साल में बेटर और इस साल में एकदम उत्तम अधिकारी का डेफिनेशन दे दिया। 76 নম্বর শ্লোক, এই মত সব বৈষ্ণব গৌরে চলিলা। এই মতো সব বৈষ্ণব ঘোড়ে চলিলা। বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা। विद्यानिधि से वत्सर नीलाद्री रहिला। यानी ঋষভানু মহারাজ का अवतार। এইভাবে সমস্ত বৈষ্ণবেরা গৌরে ফিরে চললেন। সেই বৎসর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জগন্নাথপুরীতে রইলেন। স্বরূপ সহিত তার হয় সখ্য প্রীতি। स्वरूप साहित्य तार है सख्य प्रीति। দুই জনার কৃষ্ণ কথায় একত্র এই স্থিতি। দুই জানে কৃষ্ণ কথা একত্র এই স্থিতি। স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। কৃষ্ণ কথা আলোচনা করে তারা দুইজনে একত্র থাকতেন। গদাধর পণ্ডিতে তেহ পুনঃমন্ত্র দিল। গদাধর পণ্ডিতে তেহ পুনঃ মন্ত্র দিল। পুরন ষষ্ঠীর দিন যাত্রা যে দেখিল। পুরন ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল।
পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতকে পুনরায় মন্ত্র দীক্ষা দিলেন। ৬৯ দিন তিনি সেই মহোৎসব দর্শন করলেন। তাৎপর্য, শীতকালে প্রথম ষষ্ঠীকে ৬৯ বলে। সেই দিন শ্রী জগন্নাথ দেবের শ্রী অঙ্গে শীত বস্ত্র পরানো হয়। সেই শীত বস্ত্র মাড়ুয়া বসন অর্থাৎ তাঁতির মাড়যুক্ত अद्वैत वसन। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत अभी स्टोरी होने वाला है। तो जगन्नाथ देव को मारुआ वसन पड़ा है। मारुआ वसन माने मार देवा। मार माने बुझेन तो भातेर फेना, भातेर फैन दिए मार दे ना, तो ये उनको अच्छा नहीं लगेगा। किनको अच्छा नहीं लगेगा? पुंडरीक विद्यानिधि, इनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे ये क्या, हम भगवान को क्लोथ पहना रहे हैं, वो भी मार वसन, मारुआ वसन दिया, क्या ठीक नहीं है। फिर देखिए क्या करेगा जगन्नाथ। यस, आगे। अर्चन मार्गे प्रथमे समस्त मार धुए তারপর ভগবানের শ্রী বিগ্রহে অর্পণ করার বিধি রয়েছে। তাই এইভাবে শ্রী জগন্নাথ দেবকে মাড়ুয়া বসন পরানো হলে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি এই সম্বন্ধে একটু সমালোচনা করে উৎকল ভক্তদের প্রতি কিঞ্চিত ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। ये क्या सेवा कर रहा है? भगवान को, भगवान का वस्त्र में मार दे रहे हैं, ये तो फिर ये ठीक नहीं है। जगन्नाथ परेन तथा मारुआ बसन, जगन्नाथ पड़ेन तथा मारुआ बसन, देखिया सघृण हইল বিদ্যানিধির মন। দেখিয়া সঘৃণ্য হইল বিদ্যানিধির মন। জগন্নাথ দেবকে মারুয়া বসন পরানো হয়েছে দেখে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন এবং তার ফলে তার মন কলুষিত হয়েছিল। प्रभु यहाँ पे क्या ठंड में भगवान को ये मांड का वस्त्र पहना रहे हैं? हाँ, यस। इन ऊपर में तो लिखा कि ओणम षष्ठी में उनको गर्म वस्त्र दिया जाता है। वो भी है, लेकिन मारुआ बसनों पर है। ओके। সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া, সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া, বলাই মানে बुलाया नहीं, भगवान बलराम, বলদেব, জগন্নাথ বলদেব। সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া, সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া, দুই ভাই চরান্তরে হাসিয়া হাসিয়া, দুই ভাই জগন্নাথ হাসিয়া হাসিয়া, চরান্তরে। সেই রাত্রে জগন্নাথ এবং বলদেব দুই ভাই পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির কাছে এসে হাসতে হাসতে তার গালে চড় মারতে থাকে। प्रभु जी दोनों भाई कौन? जगन्नाथ एंड बलदेव। सिस्टर को नहीं लाया। क्यों प्रभु जी उनको थप्पड़ मारे? हाउ डेयर यू, आप घृणा कैसे कर सकते हैं उनको ये वस्त्र पहनाया? ओके, लेकिन कोई हंसिएगा मत, ये बहुत श्रेष्ठ भक्त है पुंडरीक विद्यानिधि। प्रभु जी मार वाला भक्तों के प्रति उनका जो ये हुआ था उसके लिए उनको मार खा। मतलब प्रभु जी लेकिन वो बोले नहीं थे ना, पसंद था। हाँ, इसका मतलब मार वाला वस्त्र पहनाना चाहिए खरीद के ना। जगन्नाथ पहनता है। ओके, जगन्नाथ पहनता है। आई डोंट थिंक। हाँ, यस। प्रभु पुंडरीक बुद्धियानिधि, लेकिन मन में घृणा आया, लेकिन बोले थे क्या वहां पर? জগন্নাথ পরেন তার দেখিয়া সঘৃণ হইল বিদ্যানিধির মন। শ্রী জগন্নাথ দেবকে মারুয়া বসন পরানো হয়েছে দেখে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন এবং তার ফলে তার মন কলুষিত। ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন, ये एक्स्ट्रा प्रभुपाद जी लिखा है। ओके। গাল ফুলিল আচার্য অন্তরে উল্লাস, গাল ফুলিল আচারে অন্তরে উল্লাস, বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। महामंत्री माता जी, उनका गाल तो फूल गया, इतना थप्पड़ खाया, लेकिन अंतर उल्लास, अंतर में आनंद क्यों है? क्योंकि भगवान के दर्शन हो रहे साथ से। हाँ, और भगवान के हाथ स्पर्श लगा। हाथ से प्रहार हुआ है। कौन कौन ऐसे खाना चाहेंगे? तो सभी। हरि बोल, हरि बोल। ओके, हरी बोल, हरी बोल। फिर दूसरा दिन क्लास में नहीं आएगा तो उससे अच्छा क्या है? यस भानु माता जी। ঠাট্টা করে বলছি, दूसरा दिन क्लास में फिर नहीं आएगा। वीडियो ऑफ।
এইভাবে চর খেয়েও যদি তার গাল ফুলে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও পণ্ডিত বিদ্যানিধি অন্তরে অত্যন্ত উল্লাসিত হয়েছিল। সে কথা বিস্তারিত ভাবে श्रील वृंदावन दास ठाकुर वर्णना করেছে। इसलिए कविराज गोस्वामी इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके गुरुदेव ने चैतन्य भागवत में डिटेल में बताया है। এই মতো প্রত্যব্দ আইসে গৌরের ভক্তগণ। माता जी पाना मैं यस এই মতো মহাপ্রভু চারি বৎসর नहीं 82 नंबर। এই মতো প্রত্যব্দ আইসে গৌরের ভক্তগণ। এই মতে প্রত্যবদ আইসে গৌর ভক্তগণ প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দর্শন। প্রভু সঙ্গে রহি কবে যাত্রা দর্শন। এইভাবে প্রতি বছর গৌরের ভক্তরা এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রথযাত্রা দর্শন করতেন। তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছে विशेष বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব নিঃশেষ। विस्तारिया आगे ताहा कहिब निशेष। তার মধ্যে যে যে বছর विशेष विशेष घटना घटेছিল, ऐसे बहुत साल बीतते गया, लेकिन जो मेन साल में जो कुछ घटना घटा সেগুলি আমি পরে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করব। কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, এই মতো মহাপ্রভুর 4 বছর গেল। এই মতে মহাপ্রভু 4 বছর গেল। দক্ষিণে যাওয়া আসিতে 2 বছর লাগিল। দক্ষিণে যাইয়া আসিতে 2 বছর লাগিলেন। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 4 বছর অতিবাহিত করলেন। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে তার 2 বছর লেগেছিল। और मुझे देखिए इतना दिन से क्वेश्चन था 6 साल में भ्रमण किए, साउथ ट्रिप में 2 साल लगा, अब आके आया लिखा हुआ 2 साल लगा साउथ ट्रिप में। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु यहाँ पे लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु ने 4 वर्ष बिताए, तो पुरी में 4 वर्ष बिताए। Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu passed 4 years. He spent the first 2 years on his tour in South India. वो भी संन्यास लेने के बाद आगे देखते हैं। संन्यास से 24 साल में लिया। तो इसका मतलब फिर 2 वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत और 4 वर्ष यहाँ, तो 30 वर्ष के हो गए महाप्रभु। ठीक, आगे देखते, आगे भी एक श्लोक है। আর 2 বছর চাহে বৃন্দাবন যাইতে। নেক্সট জলদি আর 2 বছর চাহে বৃন্দাবন যাইতে। রামানন্দ হটে প্রভু না পারে চলিতে। রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে। অন্য 2 বছরে শ্রী চেতন মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু রামানন্দ রায়ের চাতুরীর ফলে তিনি জগন্নাথপুরী ত্যাগ করতে পারেননি। याद है आप लोग को? अभी 4 मास हो जाने दीजिए। 4 मास के बाद बोला, चातुर्मास के बाद भी ठंड पड़ गई, अभी मत जाइए, गौर पूर्णिमा के दोल यात्रा के समय जाइए। ऐसे करके चातुरी মানে চালাকে তারা যেতে পারে। 86 নম্বর শ্লোক। পঞ্চম বৎসরে গৌরের ভক্তগণ আইলা। पंचम बत्सरे गौड़ेर भक्तगण आइला। রথ দেখি না রহিলা গৌরের চলিলা। रथ देखी ना रहिला गौड़ेर चलिला। পঞ্চম বৎসরে গৌরের ভক্তরা রথযাত্রা মহোৎসব করতে এলেন। রথ দেখে তারা সেখানে রইলেন না, গৌরে ফিরে গেলেন। ভাই 4 मास नहीं रहा। महाप्रभु नहीं थे तो वो लोग नहीं रहे होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। बच्चों यानी 5वां वर्ष में। हाँ। तबे प्रभु सार्वभौम रामानंद स्थाने। नहीं होगा ना प्रभु जी, 86 तक है ना। 86 अच्छा। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী।
एथानाइतो ग्रंथरम चंदरिति हरि हरि जय 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 हरि हरि बोल।